نثار احمد الناصر ہے. امداد رکشا شکیل احمد شہزاد سرزی محمد الدین تنویر افضل نثار احمد. جسٹس محمد ممتاز خان صاحب جی تشریف رکھ. جسٹس محمد ممتاز صاحب. ہمارے مہمان اعزازی میں سر جناب شکیل احمد صاحب سے بھی میری گزارش ہے. جناب شکیل احمد شان جناب نثار احمد ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئے. جناب نثار احمد. مولانا آزاد کالج کے پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم ہاشمی شعبہ اردو سے جن کا تعلق ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں. صاحب کتاب یعنی کہ وہ اسٹیج پر آنے کی ضرورت ہے. زینت پڑھیں گے. میں بس اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عبید اللہ صاحب کا تعلق گرچہ مظفرپور سے رہا لیکن جب انہوں نے کلکتے میں قدم رنجا فرمایا تو پھر کلکتہ کے ہی اپنا مسکن سمجھ لیا. کلکتے کو چھوڑ کر کے وہ کبھی نہیں گئے. یہیں وہ 54 نمبر علی الدین اسٹریٹ میں رہا کرتے تھے. 8x8 کے ایک کمرے میں رہا کرتے تھے جس میں ان کی اہلیہ ان کے کئی بچے وہاں پرورش پائے اور بہت بعد میں وہ ہسٹنگ میں جو ٹیچرز کوارٹر ہے اس میں وہ شفٹ ہوئے تھے. اگر قناعت صبر کی مثال دیکھنی ہو یا فکر کی مثال دیکھنی ہو تو وہ عبید اللہ صاحب سے کوئی سیکھے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو ایک ہی لباس میں مقید رکھا. اس سے کبھی باہر نہیں نکلے. دور سے سمجھ میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ عبید اللہ صاحب کی شخصیت ہی ہو سکتی ہے. ایک سفید کرتا سفید خالدار پاجامہ اور سر پہ ایک گول ٹوپی ہوا کرتی تھی اور کالی رنگ کی سیاہ رنگ کی چپل یا سینڈل ان کے پاؤں میں ہوا کرتا تھا. اسی لباس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی بھر استعمال کیا. اور اگر ٹھنڈے کا موسم ہو یہ آرسین نے بھی آج کے مضمون میں صالحین نے بھی لکھا ہے کہ مفلر یا جیکٹ یا سویٹر جو بیچ سے جس کی بٹن ہوا کرتی تھی وہ پہنا وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کو میں نے اور کسی لباس میں نہیں دیکھا ہے. چونکہ میں بھی کلکتہ مدرسے کا ایک طالب علم تھا ایک تعلق تو وہاں تھا. دوسرا تعلق یہ تھا کہ وہ میرے والد کے گہرے دوستوں میں سے تھے. اسکول میں 2 ہی 3 میرے والد کے دوست تھے جن میں ایک نام عبید اللہ صاحب کا آتا ہے اور تیسری یہ تھی کہ میں ان سے براہ راست ان کے گھر میں جا کر کے بھی اس زمانے میں جب ہم لوگ مدھیمک کے ایگزام دے رہے تھے تو ایک نیا سبجیکٹ آ گیا تھا سامنے جسے ٹریگنومیٹری کہتے ہیں. اس سے پہلے ٹریگنومیٹری نہیں ہوا کرتا تھا تو کلاس 9 اور 10 میں اس کو سیکھنے تھی کہ سچ کی دکان ہمیشہ چلتی ہے. جھوٹ کی دکان صرف چند مدتوں کے لیے سامنے آتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. عرصے میں آپ دیکھیے گا کہ 2002 3 4 وغیرہ کے زمانے میں کافی اس میں ترقیاتی کام ہوئے. سارے پیسے کو لگایا اور اس سے پہلے آڈٹ رپورٹ ہے کہ اپنے والد کے سلسلے سے کوئی ایسی چیز پیش کرے جو تمام لوگوں تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. تو ان کے 2 صاحبزادے صالحین اور عارفین جو ہیں انہوں نے لگاتار آپ لوگ عارفین سے زیادہ واقف نہیں ہوں گے گرچہ وہ بھی سائنس کے ٹیچر ہیں. یہاں شبلی IAS صاحب آ گئے ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آنے کی زحمت کرے. جناب شہزاد شبلی. تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی. صالحین تو بہت ایکٹیو ہیں. آپ لوگ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تعلیمی علمی ادبی اور ثقافتی اداروں سے یہ جڑے ہوئے ہیں.
تو اس لیے ان کا زیادہ پھیلاؤ بھی ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک کتاب مرتب کی جائے اپنے والد محترم کے حوالے سے، اور اس کی ذمہ داری بہت ہی مضبوط کاندھے یعنی ڈاکٹر افتخار احمد کے کاندھے پر دی، جنہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کتاب کو پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ہر اچھا کام پر کلام قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے ہیں، تو آج کی اس تقریب کا بھی آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوگا، جس کا جو کلام پیش کریں گے وہ مولانا حافظ ساجد اختر صاحب پیش کریں گے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا پروقار آغاز کریں۔ جناب حافظ ساجد اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ نہیں ہے سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، دنیا میں کوئی آپ سا سلطان نہیں ہے۔
حضرت اے کاش نبی خواب میں فرما دے مجھ سے، اے کاش نبی خواب میں فرما دے مجھ سے، اے کاش نبی خواب میں فرما دے مجھ سے، اے کاش نبی خواب میں حسرت ہے کہ جاؤں در آقا پہ کبھی میں، حسرت ہے کہ جاؤں در آقا پہ کبھی میں، حسرت ہے کہ جاؤں در آقا پہ کبھی میں، حسرت ہے کہ جاؤں در آقا پہ کبھی میں، اب دل میں میرے اور کوئی ارمان نہیں ہے، اب دل میں میرے اور کوئی ارمان نہیں ہے، سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ یہ تھے جناب حافظ ساجد اختر صاحب جو تلاوت کلام پاک اور نعت شریف پیش فرما رہے ہیں، تاکہ ایک خدمت میں ایک میمنٹو اور ایک گلدستہ پیش کریں۔ عبید اللہ صاحب کے دوسرے صاحبزادے محمد شمس العارفین صاحب سے میری بھائی سامنے نہیں آئیے پلیز۔ اس سائڈ سے جناب سید رضا صاحب جو عبید اللہ صاحب پیش کریں۔ بھائی سامنے نہیں آئیے بھائی پلیز۔ اس کو دیکھیں تیسرے داماد محمد شمشاد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آدھان خدائے ملتلا صاحب، جناب ڈاکٹر احسن ہاشمی صاحب بھی غالباً تشریف فرما ہیں۔ مدیحہ پیش کر رہی ہیں یہاں دیکھیں گے، ایک سیکنڈ۔ اس طرف بابو یہاں دیکھیں گے سر، یہاں دیکھیں گے۔ بھائی بار بار سامنے نہیں آئیے پلیز۔ آپ ویڈیو کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن دوسرے
तकरीब रस्म इजरा में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और मेरे घर वाले जो मेरे भाई, मेरे दूल्हा भाई और बेटियों को देख करके आपको लग रहा है ये इस तरह से अदबी प्रोग्राम में बहुत कम जाया करते हैं। फूल का गुलदस्ता देना या मेमेंटो देना बहुत बेतरतीबी हुई इसमें। खैर माजरत खाऊँ मैं खैर मकदम करता हूँ आली जनाब नदीमुल हक साहब का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन। आप मेरे वालिद के इंतकाल के दिन घर तशरीफ़ लाए थे ताज़ियत के लिए, मुझे याद है। मैं खैर मकदम करता हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब GH उबैदुर रहमान सर का, अब्बा के कलीग भी रहे, मेरे बहुत शफीक उस्ताद। और उनसे मैं 87-88 में, जब वो क्लास 7 या 8 में मेरे टीचर थे, तो उनसे जब मैंने इंग्लिश कुछ सीखा, वो मेरी ज़िंदगी को बदलने में, मेरा रुख तय्युन करने में कुछ उस वक्त कारआमद बना। तो मैं इसके बाद जस्टिस मोहम्मद मुमताज़ खान अब्बा के स्टूडेंट रहे, और हमारे हाउसिंग में, हेस्टिंग्स हाउसिंग में जब हम लोग शिफ्ट किए थे, तो मुमताज़ भाई शायद पहले थे कि जाकर के अब्बा से मुलाकात किया उन्होंने। आपका खैर मकदम है। जस्टिस इम्तियाज़ अली शाह, एक ही हाउसिंग में रहते थे हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते, और इम्तियाज़ अंकल 4th फ्लोर में रहते थे, बहुत 3rd फ्लोर में रहते थे। बहुत डायनामिक जज, और उन बाद में वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन हुए। निसार अहमद साहब बहुत ही फ़वाल एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के, शायद वो 1964 में अब्बा के स्टूडेंट रहे थे, याद नहीं है सर को। 1964 में अब्बा मोहम्मद जान में कुछ अरसे के लिए पढ़ाया था। डॉक्टर सरफराज अहमद खान अब्बा के स्टूडेंट रहे, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे भाईजान शहजाद शिबली, उनके है वो हेस्टिंग्स में डॉक्टर SM हाशमी, मेरे कलीग वक्त के लिए वो मेरे कलीग रहे, और घर आना जाना रहता था। अब्बा उनसे बहुत शफकत रखते थे, बहुत मोहब्बत रखते थे। और सामने मैं देख पा रहा हूँ, मैं शाहिद भाई जिनको देख रहा हूँ, एजाज भाई, और किंदर बिन मुख्तार भाई हैं, नौशाद भाई हैं, राजू भाई, नसीम अजीज़ साहब है, रेहान भाई हैं, अमजद भाई। मैं शहर की सब मौजूद हस्तियों को देख रहा हूँ, नासिर साहब, आफ्ताब साहब, सफीरुद्दीन सर उनके कलीग रहे हैं, गुलाम हुसैन सर, और वारिस सर, अबू बकर जिलानी साहब कुछ दिन कलीग रहे, हमारे इंतखाब भाई। और अब तक मेरे जितने भी सामने मौजूद हज़रात हैं, आप लोगों के आने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, मगर वक्त की कमी है। एक 2 साल का बच्चा जो यतीम हो जाता है, यतीम नहीं दुर्रे यतीम, वालिदैन और भाई बहन और बहनें एक किसी मौजी वबा में इंतकाल कर जाते हैं। उनका सिर्फ दुनिया में एक सहारा था, 5 साल का उनका बड़ा भाई। उनकी ने छोटे भाई की खातिर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली टेलको में, और मुलाजमत करने लगे, और किफ़ालत के लिए 40 रुपया दिया करते थे। बड़े छोटे भाई लंगर सिख कॉलेज में केमिस्ट्री में उन्होंने तालीम शुरू की। इतना अच्छा उनका रिजल्ट था कि शायद यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2nd टॉप किया था। बट पार्ट 2 में एक राइट लगा था, और जिसमें बड़े मामू भी शहीद हो गए थे, बड़े अब्बी की भी लापता थे। उस जहनी कैफियत में उन्होंने इम्तहान दिया। उसके बाद इम्तहान दे करके निकले हैं 30 जून, और उसी दिन हेडमास्टर खड़े हुए और हाई स्कूल के, उन्होंने दावत दी कि मेरे स्कूल में आके पढ़ू कर दी। आखिरी इम्तिहान था 30 जून, और 1 जुलाई से उन्होंने मुलाजमत शुरू की थी। वो सिलसिला चला, फिर मोहम्मद जान हाई स्कूल में आए। मोहम्मद जान हाई स्कूल में उन्होंने शिबली सर, मदा सर, न्याज सर ने उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और मदरसा आलिया आने के लिए कहा। वो 1965 में मदरसा आलिया आए, और 2004 में 39 साल लगातार मदरसा आलिया में, पहले असिस्टेंट हेडमास्टर, फिर असिस्टेंट हेडमास्टर इंचार्ज, फिर हेडमास्टर की हैसियत से 2004 में उन्हें रिटायरमेंट हुआ उनका। 2005 में उन्होंने हज की शहादत हासिल की। उसके बाद हम लोग पाक सर्कत में शिफ्ट कर गए। अम्मी की बीमारी चल रही थी, और इन लोगों में रोनी काकू का मैं तस्करा भूल गया। अगर से बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब्बा का एहसान है उनके ऊपर, लेकिन हम लोगों के ऊपर एहसान है रोनिन काकू का। मेरे फादर की तरह है। मेरे अम्मी का जो इलाज किया उन्होंने, काकी माँ भी हैं यहाँ पर, मेरे वालिद की तरह ही हैं। इनकी दोनों बहनें मुझे भाई बोटा पहनाती थी। मेरी राखी बहनें हैं, इनकी दोनों बेटियाँ संगीता और प्रिया। तो मैं आप लोग सबका खैर मकदम करता हूँ, और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस
जलसे में तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सामने जब आए तो मुंह में ज़बान नहीं वाला मामला होता है कि एक ज़बान गुम हो जाती है और आदमी की सारी गुफ्तगू उसके अंदर घुट करके रह जाती है। जनाब नासिर अहमद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा नासिर साहब से कि आप तशरीफ लाएं। शमसुल आरफीन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और नासिर साहब की खिदमत में एक मेमेंटो और गुलदस्ता पेश करें। नुमाई का फरीजा अंजाम दे दिया जाए ताकि नदीम साहब से भी हम लोग उनकी गुफ्तगू को समाप्त फरमा सके। मैं गुजारिश करूंगा सालेहीन से कि किताब इनके सामने रखी जाए। और मेरी एक गुजारिश और है सालेहीन कि सिर्फ एक किताब नदीम साहब खोलेंगे जब उसकी रूह। तनवीर अफजल साहब कहाँ हैं? यहाँ तशरीफ फरमा हो। जी जी, आपका मैं नाम पुकार चुका था, तनवीर अफजल साहब बहुत डायनामिक WBCS ऑफिसर। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आए। तनवीर अफजल साहब। मुरत्तिब भी आए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि खड़े हो जाएं ताकि हाँ, अब आप लोग खोलिए। शाहिद आलम साहब से मेरी गुजारिश, WBCS अफसर शाहिद साहब बहुत एक्टिव माइनॉरिटी में रहेंगे। लीजिए, हो गए। मैं लगे हाथ तो चाहूंगा कि हमारे तनवीर अफजल साहब हैं, अभी DM हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे निसार अहमद साहब हैं, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। नासिर अहमद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी कलकत्ता खिलाफत कमेटी। डॉक्टर रौनन दास गुप्ता हैं, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PG हॉस्पिटल। और स्पेशल गेस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर सरफराज अहमद खान हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर SM हाशमी साहब हैं, मौलाना आज़ाद के प्रोफेसर। और यहाँ पर और आज के नाज़िम हमारे शहनवाज शिबली साहब, शहनवाज शिबली साहब, किताब के मुसन्निफ या कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, वो भी हैं। और लायक फर्जन तो सभी हैं उनके, लेकिन यहाँ पर ख़ास करके हमारे शमसुल साहिन साहब हैं, जिनको हम लोग उर्फ आसिफ के नाम से भी जानते हैं और इसी नाम से ये ज़्यादा मशहूर हैं। और उनके पूरे यहाँ पर जो चाहने वाले हैं सब लोग बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए, और आप सबको मेरा दिली सलाम। हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं कि इस किताब के इजरा के लिए कि मोहम्मद उबैदुल्लाह यादें और बातें। तो ये किताब ने इसमें हालांकि किताब बहुत ज़ख़ीर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की इसमें नेक ख्वाहिशात हैं उनके वालिद के ताल्लुक़ से, और ख़ुद सालिन साहब की जो पर्सनैलिटी है उससे सब लोग मुतासिर होकर करके बहुत सारे हम लोग उनके वालिद साहब से बहुत करीब नहीं थे, बहुत जानते नहीं थे, लेकिन इनसे तो जान पहचान है। और हम लोग ये समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं ना कि कट पीस देख के स्थान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जहाँ इनकी परवरिश अच्छी हुई है, जहाँ ये लायक फर्जन हुए हैं, तो यकीनन इनके वालिद साहब जो इन पर मेहनत किए हैं और जो उन्होंने उनके बारे में जो बातें बताई हैं उससे हम लोग मुतासिर होते हैं। खैर, आज हम लोग उनकी किताब के इजरा के मौके पर यहाँ यकजा हुए हैं। हम लोग इनको दुआ देंगे कि भाई ये एक लायक फर्जन के हिसाब से अपने वालिद साहब को याद किए और आप लोग के सामने उनकी शख्सियत को लेकर के आए। उनका हर पहलू इस किताब में उजागर किया गया। आप जब पढ़िएगा तो देखिएगा, हर तरह किसी ने एक पेज का लिखा है, किसी ने
1.5 पेज का लिखा है, किसी ने ज़्यादा लिखा है, लेकिन सब लोग मिलकर कर के एक हम्मा जहर शख्सियत को सामने लेकर के आए। उनके स्ट्रगल, उनकी जो काविशें हैं, उनका जो सोच है, ये जब आप पढ़िएगा तो सामने आते हैं। और मैं उनको फिर से मुबारकबाद दूंगा, उनके सारे ख़ानदान को मुबारकबाद दूंगा, और हम लोग जो उनके एक्सटेंडेड ख़ानदान में हैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे इस मौके पे हम लोग उनके सामने एक साथ हैं जब वो इस किताब की इजरा की खुशी मना रहे हैं। उनका खैर मकदम किया जाता है। और अभी भी जैसे जिस एकेडमी में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके भी वो मेंबर हैं, और तौफीक दे कि हम लोग अपने वालिद को इसी तरह खराज पेश कर सके। उनके नाम से उनकी यादें और बातें अगर हम लोग कलम बंद करके एक किताब की शक्ल में लाते हैं तो हमेशा के लिए महफूज कर देते, भले किसी लाइब्रेरी में हो, 100 साल के बाद भी इनका नाम रहेगा। तो किसी को अमर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसके लिए उनको सलाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और तनवीर अफजल साहब की खिदमत में मोमेंटो और गुलदस्ता पेश करें। जनाब तनवीर अफजल साहब की खिदमत में शमसुल आरफी। ये लोग हमारे अभी पर्व हैं ये अदबी हवाले से कि इन लोग जिन महफिलों में जाते हैं उस महफिल का वक़ार, उसके वक़ार में इजाफा कर देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात, मैं बिला ताख़ीर बिला तमहीद अब गुजारिश करूँगा जनाब नासिर अहमद साहब से कि वो अपने उस्ताद मुहतरम के हवाले से चंद कलमात यहाँ आकर बयान करें ताकि उससे मुस्तफ़ीज़ दूसरे लोग भी हो सके। जनाब नासिर अहमद साहब खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी, बहुत सारे इदारों से मुंसलिक और रहमतुल्लाह डेकोरेटर के मालिक की हैसियत से भी बहुत सारे लोग जानते हैं जनाब नासिर अहमद साहब को। कौम की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज जिस अजीम शख्सियत के बारे में हमें लब कुशाई का हुक्म दिया गया है, ये हमारे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि गार्जियन थे, बल्कि रास्ता दिखाने वाले थे, बल्कि हर गलती पे टोकने वाले थे और हमारे रास्ते को सही करने वाले थे। बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं, ये है उससे तुम छुटकारा ले लो और तुम बगैर सोचे समझे इसको पढ़ने का कभी कोशिश मत करो, बल्कि उसको अच्छी तरह से समझ लो और उसके ऊपर में काम करने की कोशिश करो। उनका तो बहुत सारे एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर में, ख़ास तौर से मेरे ऊपर में, कि हम उसको भुला नहीं सकते। हम हमेशा उनको याद करते हैं। जनाब उबैदुल्लाह सर को 150 साल प्रोग्राम होने को था, 150 साला मदरसा आलिया का उसका होने को था, और उन्होंने तमाम जो एक्स स्टूडेंट्स थे इनको इकट्ठा किया, उनको बुलाया, बोला ये तुम्हारा स्कूल है और क्या तुम लोग बस इसी तरह से रह जाओगे और कोई काम को, इस चीज़ को, इसकी इफादियत को, इसका यहाँ पे क्या क्या काम करने का है ये काम नहीं कर सकोगे। हम लोग फ़ौरन तैयार हो गए और आप ही की शफ़क़त थी कि वो प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके अंदर में हमारे टीचर, हमारे उस्ताद उबैदुल्लाह सर का बहुत बड़ा हाथ था कि वो उन्होंने तमाम एक्स स्टूडेंट्स को जोड़ा यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया यहाँ पे, फिर हम लोग आने के बाद कि इस यहाँ के बच्चे सब उसमें ट्रांसफ़र करे होंगे और यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है इसको तोड़ करके इंशाअल्लाह आइंदा अच्छी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन वो तो नहीं हो सका। इसके अंदर में बहुत सारे वजूहात हैं,
लेकिन फिर भी ये उन्हीं का इनिशिएटिव था कि हम लोग उसके लिए काम के लिए आगे बढ़े और ये काम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुकून से वो माशाल्लाह ये हुआ। तो इन्हीं चंद अल्फाज के साथ में हम क्या तारीफ़ करेंगे, वो तो मुसल्लम वो तारीफ़ के काबिल शख्सियत और एक मुदब्बिर और एक रास्ता बताने वाले वो उबैदुल्लाह सर, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दैदवर पैदा। रात वाला जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। किसी की शख्सियत अपने आप खुद यहाँ सब रोशन चेहरे हैं। जाहिर बात है जो उबैदुल्लाह साहब के गिर्द रहेंगे तो वो चेहरे रोशन ही होंगे, है ना शाहिद साहब? हजरत वाला मैं अब इंस्टीट्यूट कोलकाता का स्टेज पर तशरीफ फरमा जस्टिस ताज अली शाह साहब, साबिक चेयरमैन वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज कमीशन। स्टेज पर तशरीफ फरमा शहजाद शिबली साहब IAS। नासिर अहमद साहब, आपने तो मुझसे कहा था कि अब मेरे बाद आपकी बारी है। कहाँ से इनके बाद सारी होता है आप सब। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनको देखा ना भी हो, अगर अब गालिब को तो हमने नहीं देखा, मीर को नहीं देखा, लेकिन आज हम उसके परस्तार हैं। मौलाना आजाद को भी नहीं देखा था, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके बर्ताव ऐसे होते हैं, जिनका अक्स ऐसा होता है कि उनके बाद आने वाली नस्लें जो है उनको याद किए बगैर नहीं रह सकती। अभी शम्सु सालेह साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो मोहम्मद जान हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था, मुझे याद है गालिबन मैं 1963 में मौलाना मोहम्मद जान हाई स्कूल में दाखिल हुआ और शायद उबैदुल्लाह साहब 1964 में वहाँ एज ए टीचर वहाँ अपॉइंट हुए थे। ये तो हमको याद नहीं है कि हमने उनसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि जब वो हमारे स्कूल में पढ़ा है और उसी ज़माने में जिस ज़माने में मैं वहाँ तालिब इल्म था, तो मैं उनको अपना मानवी उस्ताद ही समझूंगा। इसलिए कि अगर उन्होंने भी पढ़ाया है तो उन्होंने यकीनी तौर पर हमको पढ़ाया है। इसलिए कि जब हमने उनको देखा है, माथे की आंख से देखा है, अलग बात है कि तालीम मिली ना मिली हमको, लेकिन यह है कि उनको तो मैंने देखा दर्स व तदरीस के हवाले से, तालीम व ताल्लुक के हवाले से देखा। तो ऐसा है कि जब शम्सु सालेह साहब उन पर किताब लिखने की जब उन्होंने शुरुआत की, तो वो मुझसे भी कहने लगे कि आप ये अपना एक मजमून दे दीजिएगा। मंजर जमील साहब यहाँ हैं, एक मजमून दे दीजिए। और कोई भी अगर चाहेगा तो इन चेहरों को देख करके उन पर एक तफसीली मजमून लिख सकता है, क्योंकि ऐसी शख्सियतें बहुत ही खालखा नजर आती हैं। अब तो नजर भी बहुत कम आती हैं। ऐसी शख्सियतें जिनको देख करके खुदा याद आ जाए, ऐसी शख्सियतें जिनको देख करके इंसानियत और रवादारी याद आ जाए, ऐसी शख्सियत जिनको देख के सादगी याद आ जाए, वो सारी सिफतें उनके अंदर मौजूद थी। वो सारी अभी नासिर अहमद साहब का जिक्र कर रहे थे कि केमिस्ट्री बड़ा खौफनाक सब्जेक्ट उनको लगा, लेकिन जब उनके ज़ेर तालीम वो आए तो वो सब्जेक्ट इतना आसान हो गया उनके लिए, तो वो कहने पर मजबूर हुए कि ये कोई सब्जेक्ट है जिसको मैं सख्त समझ रहा था वो इतना आसान है। तो एक आदमी अपने तरीके से, अपने रवैये से, अपने अखलाक से, अपनी तालीम के जरिया किसी चीज़ को बहुत मुश्किल को आसान बना दे, तो ऐसी शख्सियतें कहाँ मिलती है। जाहिदुर रहमान साहब आप भी तो उसी से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करें और उनके लवाक़ीन जो अब तक इल्म की शमा रोशन किए हुए हैं उन्हें मज़ीद लौ और रोशनी, उस लौ को रोशनी में और इजाफा करें ताकि आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीज़ हों और हम सब उसके जो हक़दार बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आ जाइए आप आ जाइए कोई बात। निसार भाई, बड़ी नबी तुली गुफ्तगू आपने की। इम्ताज अली शाह साहब को कहीं जाना भी है और बहुत देर से ये बैठे हुए हैं। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साबिक भी रह चुके हैं, बहुत सारे इदारों से वाबस्ता हैं। इम्ताज अली शाह उर्दू, अंग्रेज़ी, बंगला तीनों ज़बानों में यकसां बोलते हैं और कौम के लिए हमेशा बकौल शख्स डीलर भी खाते रहते हैं। जनाब इम्ताज अली शाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, वनक्कम।
It is my proud privilege to address this august gathering, and it is also my great pleasure to say something on this auspicious occasion. We are all assembled here to commemorate the knew him as my neighbor in a Hastings housing since 1992 till 2001. He was a very soft-spoken person and introvert, and he is very sincere to his duties. Mr. Sahanaz Sahib described him vividly. I don't repeat him, and I also don't like to repeat the dignitaries who are present and who are sitting on the podium as well as in the audience. I like to say so that I am very happy that one teacher of a madrasa for whom his two sons, they are also teachers. I knew Asif. I knew him as Asif. That's how he is known as, his full name is Salihin. However, that one, I don't like to take much time from the audience. I like to say that we should be the generation, next generation, the cultural, in the present scenario of the country, you see the hatred, kullu nafsin dha'iqatul maut, আমাদের চলে যেতেই হবে. It is a fact that we have to make our exit from this terrestrial planet. But at the last of the journey, what only count, it is the deeds of the brave and just to smell bruising in the dust. আমরা দিন চলে যাব, কিন্তু আমাদের যে কাজ করে যাব সেই কাজ থেকে খুশবু বেরোবে। আজ ওয়াহিদুল সাহেব চলে গেছেন, এত তাই আমাদের প্রফেসর বসে আছেন এমনিগেছেন খান, ওকে আমি ভালো করে চিনি, ওর ফাংশনে গেছি আমি, আমার ছেলেও ওকে চিনি, ও সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি প্রফেসর। যাই হোক, আমার সঙ্গে আমার হজের সাথী ছিলেন আমাদের সিভিল সাহেব, উনার আব্বাকে আমি 1975 থেকে ইরান সহ যত ফাংশনে গেছি, উনি একটা কবিতা মানে বললে হজে গিয়ে মিনাতে আমাকে বললেন যে সাহেব যে এই হজের যে কষ্ট, 2008 সালে আমি তখন ইন সার্ভিসে গেছিলাম, উনিও গেছিলেন, বলে এই যে কষ্টটা কাউকে বলবেন না। যাই হোক, সে হজে গেলে কষ্ট হয়, তীর্থযাত্রী কষ্ট হয়, এই বলে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ে এবং ওনার অবাধ্য শুভেচ্ছা নিয়ে আমার বক্তব্য ছিল। নমস্কার। So with your leave, I have to go. I have to hand. जस्टिस मोहम्मद मुमताज खान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। जस्टिस मोहम्मद मुमताज खान साहब कलकत्ता हाई कोर्ट के साबिक जज। गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम हाज़िर जलसा। कुछ कहने से पहले मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे तकरीर करने की आदत नहीं है। ऐसे पेशे से जुड़ा हुआ था कि वहाँ तकरीर सुननी पड़ती थी, कानूनी तकरीर, और उसका जवाब लिख करके फैसला सुना दिया। आज मैं तकरीर करने के लिए आसिफ से ने कहा कि मैं पूछा कि आखिर किस लैंग्वेज में मैं ये करूँ। तो आप किसी में कर सकते हैं, वैसे उर्दू में कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा कि यार उर्दू से तो बहुत दिनों से उतना कनेक्शन है नहीं, फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया, आपके इजाज़त से मैं कर रहा हूँ। आज मुझे इस तकरीब रस्म उजरा मोहम्मद उबैदुल्लाह यादें और बातें में शामिल होकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। मोहतरम मरहूम उबैदुल्लाह जिनके ताल्लुक से जो यादें और बातें तहरीर शक्ल में बड़ी खुश असलूबी से डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब एक किताब की शक्ल दी है, काबिल सताइश है। मैं शुक्रगुजार हूँ उबैदुल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट के मुंतज़मीन का, जिन्होंने मुझे इस तकरीब में मदऊ करके इज़्ज़त बख्शी है और मेहमाना ने खुशी का खुशबूसी का दर्जा दिया है। आज उबैदुल्लाह साहब हमारे बीच नहीं रहे,
दरअसल कुदरत का तकाजा है कि इंसान आता है जाने के लिए, मौत मुअय्यन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन कुछ कर जाता है जिसकी हमेशा यादें रह जाती हैं और बातें होती रहती हैं। मरहूम उबैदुल्लाह साहब का भी ऐसा ही कुछ है। और जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लोगों का खिदमत के लिए तालीम देने के मामले में बच्चों को, खासकर गरीब बच्चे, अक़लियत के बच्चे जिनको अशद ज़रूरत, इल्म फैलाना उनका शौक़ था और नशा भी, अपने पेशे के तय इंतहाई मुखलिस, ईमानदार और बावसूल थे। कलकत्ता मदरसा टीचर रहे हैं और मुझे भी मौका मिला कि मैं कलकत्ता मदरसा में कुछ दिनों तक तालीम हासिल किया और वो हमारे उस्ताद मोहतरम थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें हैं। अगर तमाम यादों को हम चर्चा करते रहे तो पूरी रात गुजर जाएगी। पाएं इससे मिल्लत की भलाई होगी, हमारा समाज व कौम आगे बढ़ेगा और मुल्क की तरक्की होगी। यही उनके लिए खराज अक़ीदत होगी। शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आप इतनी लतीफ़ गुफ्तगू करते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं था और वाकई आपने सारी चीज़ों को खूबसूरती से समेट लिया और अपने ख़यालात का बड़े लतीफ़ अंदाज में ज़िक्र किया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत वाला, अब मैं डॉक्टर रैनन दास गुप्ता जो SSKM हॉस्पिटल में साबिक शोबे एंडोक्रिनोलॉजी के डॉक्टर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का मुख्तसरन इजहार करें। Sir, chief guest, honorable guests and learned friends, I feel proud to associate myself with this August Muhammad Ubaidullah Yadin out birthday and thus rendering homage to the undying memory of our beloved, respected Muhammad Ubaidullah sir, who is a role model, organized by Muhammad Ubaidullah Educational Trust. I remember the saying, Swadeshe Pujyote Raja, Vidwan Sarvatra Pujyote. A king is worshipped in his country, but a learned personality is worshipped everywhere. Ubaidullah sir's motto, which I admire, was plain living and high thinking. ये किताब बराए ईसाल सवाब और खैर के लिए शाये की गई है और तकरीब के खात्मे के बाद ये किताब तमाम लोगों को दे दी जाएगी। ये पहली उर्दू में गालबन इल्मी और अदबी किताब है कि शाये करके फ्री में बांटी जा रही है। हम दोनों भाइयों के शुक्रगुजार हैं, आरफीन और सालेहीन दोनों के, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे दरमियान बहुत सारे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ वहीद, जिन्होंने इस किताब की पुष्परत्ती राय भी दी है, नफीतुल्ली राय दी है। मंजर जमील साहब, सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल मजलिस मुशावरत भी यहाँ शामिल हैं। इजहार आलम साहब, अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी यहाँ मौजूद हैं। इंतखाब आलम, साबिक उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। हमारे बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त तौकीर आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के। और हमारे वो हाशिम आदिल भाई भी मौजूद हैं, जो हाशिम आदिल साहब हमेशा हर फंक्शन में तशरीफ फरमा होते हैं। ये हाँ, उनके कलीग रह चुके हैं। कलीग पे याद भी आया, उबैदुल्लाह साहब के कलीग हमारे मुरत्तिब भी रह चुके हैं, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब को, उनको जी शकील साहब भी आईएएस अफसर यहाँ मौजूद हैं। और आईएएस अफसर साहब के साथ तो मसला ये रहता है अफसरान साहब के साथ कि किस वक्त कौन सी मसरूफियत आड़े आ जाए, लेकिन वो लोग आ जाते हैं, ये बड़ी बात है। मैं किसी मुकर्रिर को बुलाने से कबल सालेहीन साहब
से दरखास्त करूंगा कि शकील साहब की खिदमत में एक मेमेंटो और गुलदस्ता पेश किया जाए। के साथ दस्ता है। यहाँ देखेंगे, सर यहाँ देखेंगे। हाँ, इसी के पहलू में भी ये एक वाकया पेश आ चुका है दस्ते मुबारक हाथों से बाहर क्या खबराते वाला। मैं अब मुझे हुक्म हो रहा है और छोटे होने का बहुत सारा नुकसान भी होता है कि मेरे बड़े भाई यानी शहजाद शिबली साहब ये हुक्म दे रहे हैं कि अब मुझे बुला लिया जाए। हाँ, इरशाद आबू तो मैं इरशाद आबू साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आने की जहमत करें। मैं बहुत देर से मेरी नजरें उनको तलाश कर रही थी। मैं जनाब शहजाद शिबली साहब से गुजारिश करूंगा कि बराह रास्त उनके शागिर्द रहे। साइंस उनका सब्जेक्ट था, तो वो मोहम्मद तगड़ा मदरसा के बाद मोहम्मद जान भी गए वहाँ तालीम हासिल करने के लिए 11 हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उबैदुल्लाह साहब से उनका तालीमी सिलसिला जारी रहा। जनाब शहजाद शिबली कैसी थी आज के इस ज़माने में जहाँ लोग अपने वक्त को संभाल कर रखते हैं, यहाँ आना इस बात की दलील है कि वाकई वो एक अच्छी शख्सियत, मुनकसरुल मिजाज शख्सियत के मालिक थे। हमारा ताल्लुक़ उबैदुल्लाह साहब से सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का नहीं है, बल्कि हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। जब से उन्होंने कलकत्ता में अपना कदम रखा और मदरसा आलिया में बहस टीचर मुकर्रर हुए, वालिद मोहतरम से आना जाना बराबर लगा रहता था। वो न सिर्फ तालीमी मामलात में बल्कि घरेलू मामलात में भी उन्हें अपना बड़ा भाई समझते थे। ज़माना बहुत ख़त्म हो चुकी है। आज आपको डॉन सर, फला सर तो मिल जाएंगे, उबैदुल्लाह सर नहीं मिलेंगे, नूरुल हुदा सर सिर्फ स्कूलों में बल्कि हमारे अपने घरों में भी तरबियत का फुकदान हो चुका है। उसकी वजह जो भी रही हो, उस पर ये बहस करने का वक्त नहीं कीजिएगा। सिर्फ पैसे कमाना है, बच्चों के वालिदैन भी सिर्फ पैसा कमाने ही को जरिया समझते हैं, इसीलिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं उनके पीछे, तो बाद में तो कैश हो ही जाएगा। बहरहाल तहजीब का हसी मयार, सरापा उनका तहजीब का हसी मयार। और 4 मिसरे और है। मोतबर थे शोबे तदरीस में रखते थे शान, मोतबर थे शोबे तदरीस में रखते थे शान। कम सुखन थे वो मगर थे, सुखन थे वो मगर थे, इल्म दानिश का जहान। साहबे सिद्को सफ़ा थे बेगरज और बेरिया, साहबे सिद्को सफ़ा थे बेगरज। हाज़िर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जैसा कि शहजाद भाई भी कह रहे थे कि सैटरडे यहाँ पर देखा, बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो हर लिटरेरी प्रोग्राम में यहाँ आया करते हैं। शायद उनका एक्सपीरियंस भी यही होगा कि इतने सारे लोग अटेंड नहीं करते। ये कहीं ना कहीं इस चीज के तरफ माँ बाप उतना वक्त हम लोग को नहीं दे पाता है जितना एक टीचर अपने स्टूडेंट को देता है। तो वो अगर अच्छा वैल्यूज देंगे, वो ऐसे वैल्यूज देंगे जिस तरह के वैल्यूज उबैदुल्लाह सर ने दिया है, तो आने वाले दिनों में भी जो टीचिंग कम्युनिटी है, जो फ्रेटर्निटी के उबैदुल्लाह सर को पढ़ के, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिखा हुआ उसको पढ़ के, उनके ज़िंदगी को समझ के, देख के, इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अफजल साहब। कई गोशे जनाब उबैदुल्लाह साहब के सामने आ रहे हैं और लोगों के तासुरात से इल्म हो रहा है कि उबैदुल्लाह साहब की शख्सियत बड़ी मारूफ मशहूर। कोशिश करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शकील साहब एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने कई अफसाने लिखे हैं और 1-2 अफसाने जिनके शाये भी हुए हैं। तो इसकी तरफ भी अगर वो तवज्जो दे तो इसमें भी वो अपने कमालात का इजहार कर सकते हैं। जनाब शकील अहमद। बुक तो नहीं रखी सर ना।
ही दिन आएगा। तो मेरे मौत से पहले आए जान। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उबैदुल्लाह साहब के बारे में स्टेज पे जो तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने आप लोगों से गुफ्तगू की है उस बारे में। ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे उनके साथ ज़्यादा मुलाकात ही नहीं हुई थी। हालांकि आसिफ को मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ। 2003 में जब मैं कलकत्ता आया था और मगरबी बंगाल एप्लीकेशन में मैं जनरल मैनेजर के तौर पर जब कलकत्ता आया था, तो आने के साथ साथ ही वहाँ एक मिलन उत्सव होता है, मिलन मेला होता है। मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया था, उसके फ़ौरन बाद नवंबर में मेला था। तभी से मैं आसिफ को जानता हूँ और आसिफ जो है मिलन उत्सव में 20 साल से वो क्विज़ मास्टर के काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन और आसिफ जो है, अभी मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरी रिहाइश है, वो आसिफ का भी फ्लाइट है। कुछ दिन के लिए वो वहाँ पे गए थे कोविड के दौरान भी। तब उबैदुल्लाह साहब से मुलाकात हुई थी। बहुत ही मुशफ़िक़ इंसान थे और जो उनके चेहरे पे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया था वो उनकी नज़रें थी, वो निगाहें थी। इतनी रोशन निगाहें जिससे लगता था कि वो छेद करते हुए मेरे जहन में जो चल रहा है वो समझ रहे थे। और यहाँ पे जो इतने लोग मौजूद हैं उससे पता ही चलता है कि किस तरह के वो इंसान थे। सभी ने कहा अगर वो इतने पॉपुलर की कोशिश करेंगे, और मैं दुआ दूँगा कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और उम्मीद करता हूँ कि सब जिनको किताबें मिली हैं वो खुद भी पढ़ेंगे और दूसरे को भी, अपने बच्चों को भी पढ़ने पे इसरार करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने बहुत इख्तिसार से काम लिया। हजरात, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनसे डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने और मोहम्मद आसिफ यानी सालेहीन साहब ने रजू किया था कि आपको इस तकरीब में जनाब सदर, स्टेज पर बैठे हुए नायब जी वकार मेहमानान, ख्वातीन और हजरात, वाकई मैं यहाँ सिर्फ सुनने के लिए आया था और मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। लेकिन यहाँ आकर जिस बात का खौफ था वही हुआ, मुझे यहाँ बुला लिया गया और अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई। इखलाक, वैल्यूज़, एडुकेशन, टीचर, बदलते हुए रंग, गुजरते हुए रंग, गिरती हुई तमाम कदरें, इन तमाम चीज़ों पर बात हो गई। तो मैं अब सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से मदरसा आलिया में था, तो हमारे साथ यहाँ हमारे दोस्त अजीज और उस वक्त के साथी अभी हैं, सारे के सारे मरहूम नहीं हुए। अगर उनसे आप पूछें तो उनको याद होगा कि फैजुल्लाह साहब कैसे टीचर थे। आज 70-50 साल बाद मुझे याद है कि उन्होंने एक ड्रामा डेथ ट्रैप को कैसे पढ़ाया था, किस हरकत और किस पावर और किस एनर्जी के साथ वो इल्म को ट्रांसमिट किया था, जो आज तक हमारे अंदर जिंदा है। और आप यकीन करें कि उसको भूल नहीं सकते। इसी तरह हमारे सालेहीन साहब और उनके भाई आसिफ और दोनों इन लोगों ने मिलकर अपने फादर के लिए जो कुछ किया है बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे स्कूल में थे उस ज़माने में जिनके लिए ऐसा काम करना चाहिए, जिनकी बातों को, जिनके कारनामे को, जिनके एटीट्यूड्स को, जिनकी सिंपलिसिटी को कम से कम लोगों के सामने आना चाहिए।
کہ انہوں نے کیا دیا, کیسے دیا, کیا کچھ دیا. تو عبید اللہ صاحب بھی ایسی ٹیچر تھے جن کی محبتیں ہمارے دل میں ہیں, جن کے تعلیمی صلاحیت سے ہم تمام لوگ مستفیض ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی کہ میں اکثر نہیں, کبھی کبھی ان کے ساتھ ماڈرن اسپورٹنگ گراؤنڈ اور ان تمام چیزوں کی طرف مختار صاحب کے ساتھ گھومنے جایا کرتا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مختار صاحب بھی ایک ٹیچر اسلامیہ ہائی اسکول میں تھے. اسلامیہ ہائی اسکول میں جتنے اچھے ٹیچرز رہے بہت کم اسکول میں رہے. آپ بس نام لیتے جائیے, بدر الحسن صاحب, نام لیتے جائیے, شکیل احمد صاحب, اور اس کے علاوہ یہاں ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں فزیکل سائنس کے ٹیچر. یہ تمام لوگوں نے بہت ہی سلیقے سے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. اور یہ 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے جو عام طور پر میں اسی طرح بات کر دے رہا ہوں. ہمارے ایک اور مہمان یہاں تشریف فرما ہے جناب سرفراز احمد خان صاحب. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ جملے یا وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو جنہوں نے اور نہیں اس سلسلے سے کہا, یعنی مختصراً اپنی گفتگو کو بیان کریں. جناب سرفراز احمد صاحب. السلام علیکم جناب صدر, معزز مہمان, سامعین حضرات. اسٹیج پر اور اسٹیج کے باہر 3 ہمارے استاد یہاں موجود ہیں. زہد الرحمان صاحب توپسیہ میں مریل اسکول میں پڑھائے ہیں. سفیر سر سر یہاں پر ہیں. عبید الرحمان سر مدرسہ سالیہ میں تھے. اور عبید الرحمان سر سے پڑھنے کا جو سابقہ ہے, جو نصیب ہوا, وہ کلاس 8 میں آ کر, اور 8 اور 9 دونوں کلاس میں ان سے پڑھا. لیکن اسکول میں داخل ہونے کے بعد ہی جو ٹیچرز لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں, بچوں میں مقبول ہوتے ہیں, کسی ٹیچر کا امید رہتا ہے کہ اب آنے والے سیمسٹر میں, آنے والا سیمسٹر تھا نہیں, سال والا سسٹم تھا, آنے والے سال میں جس ٹیچر سے پڑھنے جائیں گے تو اس میں سر کا ایک نام رہتا تھا کہ سر سے اب پڑھنے کا موقع ملے گا کلاس 8 میں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم بھی وہ بہت ذہین طالب اس طرح کے نہیں تھے کہ سائنس طرف رجحان نہیں تھا ہم لوگوں کا. اس وقت آرٹس والے تھے تو سائنس سے رابطہ کم تھا. لیکن سائنس کے سبجیکٹ میں یہ سر کا ہی دین ہے کہ اس کو سمجھ پانا اور اچھا نمبر لے کر کے آنا, یہ سر کی وجہ سے ہی موقع مل پایا. تو سر جس سے پڑھاتے تھے یہ ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے ایک یادگار ہے, وہ ہمیشہ ساتھ میں رہے گا. اس کے علاوہ ان کی سادگی, ایک ٹیچر کلاس سے ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. فردوس میں جگہ عنایت فرمائے جہاں بھی وہ نظر دیکھتے رہے ہوں گے تو ان کو روح کا سکون ملتا ہوگا کہ ہم لوگ سب مل کر کے ان کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اور آگے آنے والے دنوں میں بھی ان کے نام سے جو تعلیمی میدان میں یہ ادارہ کام کرے گی, اور یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ان کے لیے ہوگا. یہ بات بولتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ خان صاحب. محمد عبید اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مزید پروگرام بھی ہوں گے جیسا کہ خان صاحب نے بتایا. ابھی میری صالحین سے بات بھی ہو رہی تھی تو صالحین نے کہا کہ ہم آئندہ بڑے پیمانے پر ایک پروگرام کریں گے جس میں ایوارڈز وغیرہ بھی اچھے ٹیچروں کو دیا جائے گا. اس سلسلے سے بھی وہ قدم اٹھائیں گے. اب میں کلکتے کی اور ایک مشہور پربہار شخصیت جو ملی تعلیمی مسائل پر گاہے گاہے اپنے نکات پیش کرتے رہتے ہیں, فیس بک کے ذریعہ بھی, یعنی سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی, اخبارات کے ذریعہ بھی. میری مراد محمد ہمایوں خان صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب محمد ہمایوں خان صاحب. حاضرین جلسہ اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات, چونکہ حکم یہ ہے کہ جو بات کہہ لی گئی اس کو دہرائی نہیں جائے, اور بغیر تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ جہاں سلسلہ چل رہا ہے وہیں شروع کیا جائے, وہیں پہ آگے بڑھا جائے اس سے. تو اس سلسلے میں
अर्ज ये है कि चूँकि मैं मोहम्मद जान स्कूल में था और जैसा निसार साहब ने कहा है कि वो 1963 वगैरह में शायद वो अबुदुल्ला साहब भी वहाँ आए थे, लेकिन जिस तरह से निसार साहब को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है कि आए थे वो कितने दिन रहे, इसलिए कि अब्दुल्ला साहब हमारे उस्ताद थे। लोगों ने बहुत सारे उस्तादों का जिक्र किया है। सारिया में बहुत ही नामवर थे और दर्स व तदरीस के पेशे से इस तरह वाबस्ता थे जैसे कि उनके यहाँ इलाहियत का वक्त था। इलाहियत के तरबियत सरदार थे, वो इस तरह पढ़ाते थे जैसा कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और परेशान भी हुआ करते थे। जैसे जो अब्दुल्ला साहब हैं, वो सिंगुल्ला साहब थे, अंसारी साहब थे, मेरे वाली मोहतरम जनाब हकीम रहमान साहब भी थे, अब्दुल्ला साहब थे। लेकिन मेरी नज़र में शायद अब्दुल्ला साहब की तरह टीचर बहुत कम होगा। वो जिस जज्बे से पढ़ाते थे हम लोगों को केमिस्ट्री, और एक फिजिक्स के टीचर थे, ये मैथमेटिक्स के टीचर नूरुल्लाह साहब, ये लोग जिस जज्बे से पढ़ाते थे वो बहुत फायदा पहुँचा है। अब्दुल्ला साहब की शख्सियत ऐसी है कि आप अगर गूगल से भी खोजेंगे तो उस तरह का टीचर नहीं मिलेंगे। उनकी शख्सियत बड़ी उनकाई हैसियत रखती थी। हमारे केमिस्ट्री का ऐसा मामला था कि सब लोग डरते थे केमिस्ट्री वगैरह में, बल्कि मैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना आसानी से पढ़ाते थे कि हमने केमिस्ट्री में 160 में लेटेस्ट होता है, हमको 156 मिला था। सिर्फ 4 नंबर की वजह से केमिस्ट्री में हमको लेटेस्ट नहीं मिल सका। शायद आपका इजहार करें जनाब डॉक्टर एस.एम. हाशमी। आज के इस बज़्म के सदर मोहतरम, मेहमानाने ज़ी वक़ार, शागिर्दाने मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब और शुरकाए मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिल की अमीर गहराइयों से, खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अहमद को, जिनकी ज़ाती और जज्बाती कोशिशों से ये किताब मारिज़े वजूद में आई। मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब, जिनके नाम ये शाम मौनवन है, आप एक मिसाली उस्ताद, एक मुमताज़ मुअल्लिम, मुदर्रिस और मुफक्किर ही नहीं, नहायत शाइस्ता इंसान थे। उनकी सादगी, शराफत और शाइस्तगी, वजाहत और रवादारी, इल्म दोस्ती, इंसान दोस्ती उन्हें लाखों में मुमताज़ बनाती थी। इश्क जब तौफीक बन जाए तो पाकीज़गी ज़िंदगी बन जाती है, और इसकी बेनहू मिसाल उबैदुल्लाह साहब की ज़िंदगी थी। हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि उनकी हयात, उनकी शख्सियत, उनके इल्मी कारनामों की बाज़ियाफ़त के अमल में हम अपने आप को शामिल कर लें। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी सादगी, उनके मिलने का बेतकल्लुफ़ाना अंदाज आप भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं पाएंगे। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंसी या सोशल साइंस के उलूम हों, दोनों में तवाज़ुन कायम रखना चाहते थे।
और इसकी जिंदा मिसाल उबैदुल्लाह साहब साथ साथ उर्दू और फारसी में भी अच्छी दस्तरस रखते थे और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी तालीम व ताल्लुम दर्स व तदरीस, जिसने अपनी मेहनत ही को मेहनत का सिरा जाना। ऐसे कहते हैं सुखनवर सहरा। हाशमी साहब ने बहुत ही नबीतुली गुफ्तगू की। मुझे मीर का एक शेर याद आया जो भी मैं इफ्तिखार साहब के साथ डिस्कस कर रहा था कि जानेगा नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जानेगा नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। तो उबैदुल्लाह साहब की शख्सियत ऐसी ही मकनातीसी शख्सियत थी। अब मैं किताब के मुरत्ती डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिर्फ एक नाम नहीं है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिर्फ शोबे फारसी से इनका ताल्लुक नहीं है। जितना काम उन्होंने फारसी में किया है उतना ही काम उर्दू में भी किया है। सेमिनारों में मकाले लिखना, इसके अलावा भी मकाले लिखते रहते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ज़हीर भाई भी इसके गवाह हैं। कुलियात खैर दरभंगी का उन्होंने कुलियात मुरत्तिब किया है और 200 सफ़हात पर मुश्तमिल मुकदमा उसमें लिखा है। ये पहली बार उर्दू में किसी ने खैर पर काम किया है, वरना इससे पहले खैर पर्दे खफा में मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी उन्होंने करके दिखाया है। पहले ये मौलाना आज़ाद कॉलेज में शोबे फारसी के सदर थे, अब वहाँ उन्होंने अपनी सर्विस कर ली है। और इन्होंने ही ये मोहम्मद अबैदुल्लाह यादें और बातें नामी किताब मुरत्तिब की है और किताब के हर सफ़े पे इनके तरतीब का इनफराद और इख्तिसार झलकता नजर आता है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आएँ और अपने ख्यालात का मुख्तसरन इजहार करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार रहमान वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेहमानाने गिरामी, असातिज़ा, दाना व बीना शख्सियात। अभी आसिम भाई ने मीर तक़ी मीर का शेर पढ़ा था। अगर मैं उसे फ़ारसी में पढ़ूँ तो फिरदौसी कहता है नमीरम अज़िन पस के मन जिंदेम, नमीरम अज़िन पस के मन जिंदेम के तुख़्मे सुखंदा पराकंदेम। मैं मरूंगा नहीं, मैंने अपनी गुफ्तगू इल्म, अदब, सलीका, शार और नेकनामी जो कुछ भी हो सकता है उसकी बीज छिड़क दी है। और वो बीज, वो पौधा बड़ा हो करके कभी वो जाहिदुर रहमान हो जाता है, कभी वो पौधा जज साहब हो जाता है, कभी वो पौधा वो और भी जो उनके शागिर्दान हैं सरफराज साहब, कभी शहजाद भाई, ये इस तरह के वो बीज जो है वो पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा दर्स जो है वो चिराग से चिराग जलाने का काम है। एक मुअल्लिम जब जा रहा होता है तो अपनी दूसरी नस्ल को वो मशाल थमा देता है और फिर ये अमल चलता रहता है। लिहाजा ऐसे तमाम असातिज़ा जो अपनी मेहनत शाक़ा से मुआशरे को संवारने का सबब बनते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। मैंने अपने मुकद्दमे में कहीं लिखा है कि जो शख्स सारी उम्र अपने आप को अपने आप को मुतारुफ कराने के लिए या अपने आप को प्रपोज करने के लिए या बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी जिंदगी लगा रहता है तक दो में कि मेरा नाम हो जाए, मैं फला हो जाऊं, मैं ढका हो जाऊं, तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि ऐसा शख्स मरने के बाद इस तरह से दुनिया से मादूम हो जाता है जैसे वो कभी इस रुए ज़मीन पर था ही नहीं। लेकिन जो लोग नेहा खाने में इल्म और अमल को दोनों को अपना फरीज़ा और वजीफ़ा समझ करके उसकी खिदमत करते हैं, बच्चों की एक जमात तैयार करते हैं। यहाँ याद रहे कि साहिब दीवान से बेहतर है कि बच्चों की एक बड़ी जमात छोड़ करके जाएं ताकि वो सदका जारिया हो। मैं इन्हीं बातों के साथ
अपनी बात खत्म करता हूँ। किताब में जो कुछ भी है वो आपके सामने है। जलसा इख्तिताम को पहुँच रहा है, आपके हाथों में किताब होगी, आप उसे पढ़ें और अपने तासुरात का इजहार करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मरहूम की रूह को अल्लाह ताला करबत करबत जन्नत दे। खुदा हाफिज। खान साहब ने शेर सुनाया उर्दू में भी और फारसी में भी। मैं भी एक शेर उनको फारसी में नज़र कर दूं कि नाम लेके रफ्तगां ज़ाए मकुन, सादी शिराजी का शेर है। नाम लेके रफ्तगां ज़ाए मकुन, ताब अमानत नाम नेकत बरकरार। तो इसलिए भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपने असलाफ के कारनामों को हम लोग याद करते रहें। और आखिर में आज के पुरवकार सदर जनाब उबैदुर रहमान साहब से मेरी इल्तमास है कि वो आएँ और अपने सदारती खुतबे से हमें नवाजें। जनाब उबैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए हैं, मेहमान खुसूसी, दीगर मेहमान, मेरे कलीग्स रणवीर साहब हैं, शहजाद शिबली साहब सीनियर कलीग हैं, डॉक्टर साहब, रोनन डॉक्टर सैयद, शकील, हम लोग साथी नवानों में काम करते हैं, निसार साहब हैं, सालिहीन हैं, सरफराज हैं, और हमारे बहुत ही अच्छा ये महफिल जमाए हुए थे। मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हम लोग साथ थे, आसिम शहनवाज भी था। और मुझे बेहद खुशी है आज यहाँ आकर कि मदरसा आलिया से जुड़े हुए या तो उस्ताद की शक्ल में या शागिर्द की शक्ल में जो लोग जुड़े हुए थे आज यहाँ मौजूद हैं। मदरसा आलिया का जब भी नाम आता है तो मेरे दिल में भी एक आह की तरह हो जाता है। मदरसा आलिया से ताल्लुक़ मेरा बहुत ही कम रहा, 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया था। आसिफ बोल रहे थे कि आपको इसलिए यहाँ दावत दिया है कि आप मेरे वालिद साहब के साथ काम किए, कलीग थे, लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बोलूँ, क्योंकि मेरा जो जर्नी है क्लास 11-12 में अलीमुद्दीन स्ट्रीट में मैं पढ़ने जाया करता था। वहाँ नूरुल हुदा साहब साइंस पढ़ाते थे, उनसे मैं पढ़ता था, और उनके पड़ोसी उबैदुल्ला साहब थे, उनसे भी वही तारुफ थी। लेकिन जैसा आप लोगों ने सुना अब तक, उबैदुल्ला साहब बहुत ही कम सुखन, कम गो इंसान थे, शख्सियत थे। कभी मैंने वहाँ 11-12 में जब 2 साल पढ़ा था, कभी उनको बात करते हुए वहाँ नहीं देखा। वो वहाँ से गुजरते थे। आप लोग ये किताब आप लोगों को हाथ में आएगी तो पढ़िएगा कि वहाँ उबैदुल्ला साहब की भी एक रूम थी और हमारे उस्ताद नूरुल हुदा साहब भी एक ही रूम में रहते थे। उबैदुल्ला साहब अपने रूम के बाहर ट्यूशन पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और हुदा साहब जो हैं वो पैसेज में एक टेबल रहा करता था, वहाँ पढ़ाते थे। तो लेकिन कभी मैंने उबैदुल्ला साहब को वहाँ किसी से बात करते हुए या ऐसा नहीं देखा। 1986 में जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद कॉलेज से मैंने पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में एमए का दाखिला लिया था इंग्लिश में। तो बहुत ही थी, कभी वो कुर्ता और पैजामे के अलावा, टोपी के अलावा कभी दूसरे लिबास में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा होगा। और यही है कि इनकी जो कारनामे हैं, इनके जो लाइफ हिस्ट्री है, इससे सबक लेनी चाहिए हम लोग सबको और हमारे बच्चों को खास तौर से। जैसा कि हमारे रणवीर भाई बता रहे थे कि समाज कैसा बिगड़ रहा है, हमारे बच्चों को की ज़िंदगी संवर जाए, यही हमारे लिए दुआ रहेगी। और ऐसे उस्ताद की जो कोशिश थी सारी ज़िंदगी उन्होंने सर्व कर दिया। आसिफ बता रहे थे कि 39 इयर्स उन्होंने पढ़ाया
64 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 64 मेरी पैदाइश है। मैं पिछले महीने रिटायर किया हूँ। तो ये जो है ये जर्नी जारी रही। इन लोगों ने बहुत अच्छा ये सोसाइटी जो बनाया है, ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट के ज़रिए अच्छा काम हो। एक मेरी ख्वाहिश थी, मेरे ख्याल से यहाँ ताजदार बैठे हुए हैं, ये हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा ये जो मदरसा एपी डिपार्टमेंट है उसमें लैब अभी जो है नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लैब को फिर से फंक्शनल होना चाहिए। शकील यहाँ हैं, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि मदरसा आलिया के दोनों लैब हम लोग 2 या 4 लैब हैं, 4 लैब हम लोग डिपार्टमेंट से फंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये भी हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, जो लोग यहाँ मौजूद हैं अपने अच्छे मकाम पर हैं, कि मदरसा आलिया को भी थोड़ा नज़र दें, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये हमारा हेरिटेज है, सिर्फ बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, ये हमारा जैसे मुस्तकबिल भी होना चाहिए। मेरी तमन्नाएं हैं कि उस्ताद मोहतरम उबैदुल्लाह साहब की याद में आज जो महफिल हुई है वो हमेशा होते रहे और काम अच्छे हो। शुक्रिया। मैं इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए इरशाद आरज़ू साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। किस तरह लम्हा लम्हा की तस्वीर खींच ले, जी चाहता है वक्त की जंजीर खींच ले, शायद बिछड़ के मिलने का कुछ आसरा रहे, एक दूसरे के नाम की तहरीर खींच ले। ख़वातीन हज़रात, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि किसी तकलीफ को हम कामयाबी की सनद बख्शें। शागिर्दों की शक्ल में वो जिंदा रहता है। मैं अपने स्कूल के तमाम असातिज़ा जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शुक्रिया इसलिए नहीं करता हूँ कि उबैदुल्लाह साहब जिस अदारे से मुंसलिक थे और सबकदोश हुए, आप उसी से मुंसलिक हैं। आपने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी हमें बख्श दी आपने ज़िंदगानी। अब तकरीब के खातिर तुम खाली मोटे हुए जा रहे हो।